See, this is the slide. Everyone are visible? Yes, there is binary fission. Chaitanya, that are small topics. They are small topics. Main topic is metamorphosis, which is left in this chapter. Yes, I know. That I know. Now see, let me tell you, we have left in this slide on that day कि how embryo is developed. zygote में कैसे convert होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें कैसे देखिए अंदर सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये पिक्चर हमने लास्ट में देखा था. डेवलपमेंट ऑफ अ 1 वीक एम्ब्रियो, 1 महीने का बच्चा कैसे होता है मम्मी के पेट में, ये उसका पिक्चर है. दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ 5 डेज. ठीक, दिस इज एम्ब्रियो. हमने एम्ब्रियो लास्ट टॉपिक पढ़ा था. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins to develop the embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of a cell. zygote divide होता जाता है, सेल डिवीजन होता है अंदर, तो एक सेल से वो मल्टीपल सेल्स में डिवीजन होता है. The cell then begins to form groups that develops into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. The embryo gets embedded in the walls of uterus for development. ठीक है? So this is the fetus picture. बच्चा मम्मी के पेट में कैसे रहता है, और जो बच्चा मम्मी के पेट में रहता है हम उसे fetus बोलते हैं. The stage embryo in which all body parts can be seen, जिसमें बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं. अब उसका साइज इंक्रीज होता है अंदर, वो कहलाता है fetus. This is the structure of uterus. यूट्रस के अंदर बच्चा ऐसे होता है. ठीक, now we have to move on with the frog metamorphosis. frog में कैसे reproductive system होता है. So left side of mine, मेरा left side is female and right side is male as it is written here. So you can see where is ovary and where is testis. According to that, only we have moksha. Don't write anything. So according to that we have everything is same except the reproductive system. Here in female we have oviduct, vena cava, ovary, and in males we have testis, vena cava, and yes, only this much we have different in this. So check your internet connection. Moksha, you can make it large in your screen. ठीक है? So first you just understand everything is clear. I am easily visible. मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी दिखाई देगा. You just see here in the left female fat bodies, oviduct, vena cava. आपको इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है. No need to go in detail. Only you have to understand the difference between male and female in frog. Earlier we were doing dissection also, now it is banned in our laboratories. तो अगर होता तो हम आपको दिखा भी सकते थे कि in females there is vena cava and ovary and oviduct. In males we have the vena cava and the testis. ठीक है, including adrenal gland. So in this next slide we have a picture of a life cycle of a frog. फ्रॉग कैसे जन्म लेते हैं. सो दिस इज द एडल्ट फ्रॉग. ठीक, एडल्ट फ्रॉग गिव्स एग्स. फ्रॉम एग्स टेडपोल्स आर कमिंग. टेडपोल्स आर लाइक अ स्मॉल फिश. उनकी पूंछ होती है. ठीक है, दैट टेडपोल्स गेट मैच्योर्ड एंड इट गेन्स द बॉडी ऑफ फ्रॉगलेट.
धीरे धीरे देखिए उसकी बॉडी फ्रॉग के शेप में आ रही है, और जैसे ही वो और बड़ा होता है दैट टेल गॉट एक्सटिंक्ट, वो निकल जाती है टेल एंड द शेप ऑफ द फ्रॉग दे गेट. So this is the life cycle of a frog. Adult frog, egg, tadpole, froglet. No need of drawing this diagram in your copy. Only you just write the names of the cycle. Means in the cycle whatever name is given you can write that name. Means adult frog is given, egg is given, tadpole is given and froglet is given. So you just write the names only. No need of drawing the diagram. And if you know without seeing the book, first you make practice, and if you know the diagram, if you want to draw, you can draw it, but draw it nicely. ठीक है? So this much is the life cycle of a frog. See, this is the female frog sitting on a mass of its own egg. See, these all are eggs. Like sabudana khichdi. You are seeing sabudana, you are eating a sabudana at home while your mother is doing this fasting. So at that time she was preparing might be sabudanas. So the structure of this frog's egg, female frog egg is like that only. आप जब उसको पका लेते हो तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है, वो साबुदाने के जो दाने होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फीमेल फ्रॉग का एग होता है. ठीक है? So it is just a picture, you just see and understand. So this is the reproduction in frog. Frog में reproduction कैसे होता है? तो during spring or rainy season, frogs and toads, these are the two types of frog species. ये दो variety है frog की जो कि pond में present होती है या running water में present होती है, कहीं भी present होती है ये. तो during spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When male and female come together in water, the female lays 100 of eggs. A layer of jelly holds the egg together and provide protections to the egg. तो ये जो egg जब water में छोड़ती है female frogs, तो एक jelly जैसे छोटे-छोटे pouches बनाई रहती है. तो उस pouch में पूरा egg इकट्ठा होके रहता है. As the eggs are laid, the male deposits sperm over them. जैसे ही वो अपना एग छोड़ते हैं फीमेल्स, मेल्स उनके ऊपर अपना स्पर्म डालते हैं. Yes, you can say 100 eggs, but it is uncountable. You can't count it. आप काउंट नहीं कर सकते. हर फीमेल की अपनी अलग कैपेसिटी होती है. Okay? So as the eggs are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm contact with the egg. This results in fertilization. तो जैसे कि आपने ह्यूमन बींग का फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे ही अभी आप इसमें भी पढ़ोगे कि जो फीमेल होती है वो पानी में अपने एग को छोड़ देती है. मेल्स जो होते हैं वो अपने स्पर्म को उसमें डिपॉजिट करना शुरू करते हैं. स्पर्म पानी में अपने टेल की वजह से तैरते हैं और तैर कर वो अपने एग के पास जाके उसको फर्टिलाइज करते हैं. सो दिस इज द यस दे आर कवर्ड. यस भूमिका, ये सारे एग जो होते हैं कवर्ड रहते हैं. जैसे कि मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको ओवम के बारे में बताया था, अंदर जो एग था, एग के बाहर जोना पेलिस्यूटा था. ठीक है, उसको पेनिट्रेट करता है स्पर्म, उसको तोड़ता है, फिर वो अंदर जाके उसमें फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक, तो सेम इसमें भी वैसे ही है कि फीमेल के ऊपर एक कवरिंग रहती है, उस कवरिंग में ही जाकर स्पर्म चले जाते हैं. नो, बिकॉज इधर सारे मर नहीं सकते हैं भूमिका. इन दिस केस व्हाट इट इज रिटन हियर, फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स. तो मिलियन ऑफ स्पर्म भी तो होंगे, 100 ऑफ स्पर्म भी तो होंगे. तो हर एक एग में जाके भी अगर एक स्पर्म जाएगा तो मतलब लगभग सारे फर्टिलाइज होते हैं. मगर ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता. ह्यूमन बींग में तो सिर्फ एक एग है, एक एग के पीछे ढेर सारे स्पर्म दौड़ रहे हैं, तो उनमें से तो एक ही फ्यूज होगा ना, बाकी सब तो खराब हो जाएंगे. इसमें ऐसा नहीं होता. इसलिए जो फीमेल मतलब जो फ्रॉग्स होते हैं ना, उनके बच्चे ढेर सारे होते हैं. द स्पर्म कॉन्टेक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. तो ये है फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि
During rainy season or spring season, frogs and toads move to the ponds and slow flowing streams. When the female and male come together in water, the female lays 100 of eggs. A layer of jelly holds the egg together and provide protections to the egg. ठीक है? As the eggs are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm contact with the egg. This results in fertilization. Though the animals lay 100 of eggs and release million of sperms, all the eggs do not get fertilized. This is because the eggs get exposed in water movement, wind and rainfall. Also, there are other animals in pond which may feed on eggs. Yes, तो अगर मान लीजिए इसमें ये कुछ selected conditions होती हैं कि अगर रेनी सीजन के समय पर ये लोग का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है और या फिर बहुत विंडी टेम्परेचर है, बहुत हवा चल रही है, तो एग क्या होता है, टूट जाता है. पानी में भी हवा चल रहा होता है, एग टूट जाता है. और बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो एग रप्चर हो जाएगा, स्पर्म टूट जाएगा. फिर ये एग जो होते हैं बहुत सी फिशेस के फूड भी होते हैं. फिश फ्रॉग्स के एग्स को खाती भी है या दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उस पे भी इनके एग्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ टेम्परेरी कंडीशंस हैं. Yes, so Bhumika, now it is clear that some of the eggs die. How they can die? ठीक है, कि कुछ एनिमल्स खा लिए, कुछ बारिश से टूट गए, कुछ विंडी सीजन से टूट गए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, then only they can die. But not during the fertilization. फर्टिलाइजेशन में नहीं होता. ये कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के कारण ये होता है. ओके, so this is the metamorphosis. Metamorphosis is a 2 marks question if only definition comes. ठीक है, and if the diagrams come or if any example comes, then you have to write the example of frog, कि how the frog reproduce. I think you have got the syllabus. VP ma'am will tell you the syllabus. You will get the syllabus, beta. She will give you in the group. Metamorphosis is a biological process of transforming a larva into an adult. This involves relatively sudden and abrupt changes in the animal structure. Frogs and insects are the examples of organisms showing metamorphosis. तो अभी मैंने आपको इस पिक्चर में बताया था कि how the frog changes its position, its structure. See, आप जब फ्रॉग देखते हैं तो आपको फ्रॉग ऐसा दिखता है, लेकिन आपने कभी सोचा था या आपने कभी सामने से देखा है कभी कि फ्रॉग का शेप इज लाइक अ फिश? ये फिश के जैसे टेडपोल एंड फ्रॉगलेट होता है, ये आपको नहीं पता है ना. तो ये जो सडन चेंज आता है, बायोलॉजिकल चेंज आता है फ्रॉग में, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक, मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ लार्वा इनटू एन एडल्ट. एक लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना और उसमें उसकी पूंछ अलग हो जाना, उसकी टेल अलग हो जाना. दिस इन्वॉल्व्स अ मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस. तो ये आपको किस में दिखता है? फ्रॉग में दिखता है, इंसेक्ट्स में दिखता है. बहुत से इंसेक्ट्स के विंग्स नहीं आती है, जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं उनका विंग्स आता है, या तो वो ऐसे होते हैं छोटे छोटे टेडपोल्स के जैसे होते हैं, छोटे कीड़े के जैसे होते हैं. धीरे धीरे जब वो मैच्योर होते हैं उनके विंग्स आना शुरू हो जाती हैं. तो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, व्हिच इज वेयर इज द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज फ्रॉग. As I told you, you can write this example that how this metamorphosis occur in frog's life cycle. So now move on to the asexual reproduction. Asexual reproduction needs no 2 types of gametes. ठीक, सिर्फ एक ही गैमीट में सब काम हो रहा होता है. Is a mode of reproduction that does not involve the fusion of male and female gametes. It requires only one parent and the offspring produced are exact copies of their parents. मतलब इसमें किसी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं, क्योंकि asexual लिखा हुआ है. That is the only one parent is required, either male or the female. ठीक है. This happens in only in plants.
So these are, I think you have read this in last class also. So this is the example of binary fission. First we will take the example of binary fission. Binary fission, binary का मतलब होता है two and fission means breakdown. तो one cell divides into two or mother cell divides into two daughter cell. That is the binary fission. ठीक है, तो ये जो होता है this occurs in a amoeba. Amoeba is a type of single cellular organism जो कि सिंगल सेल का होता है. इसके ऊपर अगर कभी ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसको इजिली आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते. इट नीड्स अ माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है जब ये ऑर्गेनिज्म जमीन पे कहीं मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है, तो ये चल रहा होता है, तो इसके ऊपर मान लो कभी कोई लकड़ी गिर गई या इसमें कोई पत्थर गिर गया या इसमें कोई पैर रख दिया कोई एनिमल ने, तब इसका फिजन हो जाता है, टूट जाता है ये. एंड देन इफ इट ब्रेक्स इट अगेन डेवलप्स इनटू टू सेल्स. अगर ये दो टुकड़ों में टूटता है तो जो इसका सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस इजीली डिवाइड हो जाते हैं. ये इसका एक प्रोसेस है. ये इसमें इसको इसीलिए हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है स्यूडोपोडिया. ठीक है, दिस यू विल लर्न इन क्लास 10. ठीक, तो स्यूडोपोडिया का मतलब ये होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग्स. इसको स्यूडोपोडिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर हैविंग फॉल्स लेग. ये अपने पैरों को, मतलब इसके पैर नहीं होते लेकिन ये अपने किसी भी आर्म से फूड को वैक्यूल के थ्रू अपने अंदर ले लेता है, खाने को ले लेता है. ठीक है, ये आप डिटेल्ड बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिए. It is a type of asexual reproduction in which a single cell divides into two halves. No need of asking any male or female. Yes, they can die hard. ठीक है, they can die because they are the amphibians. चैतन्य, आपका क्वेश्चन था why the frog reproduce in spring or rainy season. ये amphibians होते हैं, ये पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं. तो ये जमीन में रहते हैं तो इनके जो वो रहेगा, जो एग रहेगा वो इजिली फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा स्पर्म के साथ में. जब ये पानी में अपने एग को छोड़ते हैं तो वो इजिली एक दूसरे से मिल जाते हैं स्पर्म और फर्टिलाइज हो जाते हैं. जमीन में तो मिल नहीं सकते ना स्पर्म, इसलिए ये रेनी सीजन में ही करते हैं. ठीक है, तो अब हम बाइनरी फिजन, मैंने आपको बताया कि डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स. ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा. बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई होते हैं. जैसे कि आपने जब मम्मी घर में कभी कर्ड बनाती है, दही बनाती है, तो उसमें थोड़ा सा रात का या थोड़ा सा दही डाल देती है, फिर उसको रात भर बाहर रखती है, तो उसमें गुड बैक्टीरिया जो होते हैं जिसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, वो इजिली मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल हो गया, बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज अमीबा. इन अमीबा द डिवीजन ऑफ सेल कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेस. कहीं भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया. It involves the division of its nucleus into two nuclei, which is followed by the division of its body into two halves. Each half of the body receive a nucleus. ये भी मैंने अभी आपको समझाया कि वो दो न्यूक्लियाइज में सूर्यांश, सारे कछुए ग्रो नहीं होते. कछुए के साथ में ये है कि कछुए जो होते हैं वो अपने एग को पानी के अंदर नहीं रखते हैं. कछुए अपने एग को किसी रेत वाली जगह पे गड्ढा करके या मिट्टी वाली जगह पे गड्ढा करके डालते हैं. तो इसलिए जो कछुए अंडे देते हैं वो हमेशा नदी के किनारे देते हैं. तो उनके अंडे अगर सेफ हो गए क्रोकोडाइल से या स्नेक से, क्योंकि स्नेक को भी इजिली पता चल जाता है कछुओं ने अंडा दिया है, तो अगर सेफ हो गए तब तो उनके बच्चे बनते हैं, निकलते हैं बाहर, अदरवाइज नहीं होता. तो कछुए इज डिफरेंट. इवन क्रोकोडाइल्स के साथ में भी सेम होता, वो भी अपने अंडे ऐसे ही अंदर रखते हैं. स्नेक भी ऐसे ही करता है, अपने अंडे अंदर रखता है, बट डिपेंड अपॉन द कंडीशन. मतलब स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, जीने के लिए जो ज्यादा स्ट्रगल करेगा वही जी पाएगा. तो ये सेम इनके साथ में भी ऐसे ही होता है. ओके, सो एनी डाउट नाउ? थैंक यू सूर्यांश. तो ये था बाइनरी फिजन. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट once again. I am giving you 1 minute for reading. Pulkit, why you said no, ma'am?
Okay, so this is the binary fission, ठीक है, for an organism, ठीक. So now we have to move on to the budding. This is the budding in Hydra. Budding में क्या होता है कि बर्ड्स निकलना, जैसे कि आप लोगों ने पोटैटो में पढ़ा था, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम आई बोलते हैं और दैट इज द बडिंग, बड बोलते हैं उसको ना. सेम वैसे ही इसमें होता है कि बडिंग, उसकी मदर बॉडी जो होती है, मदर बॉडी में से छोटा सा बड निकलना शुरू होता है. वो बड क्या होता है, जब थोड़ा मैच्योर होता है मदर की बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होके अपनी एक अलग बॉडी बनाता है. कोई बात नहीं, इट्स ओके. यस, इट्स ओके पुलकित. होप सो कि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट वीक. टुडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, सो नो चैप्टर इज लेफ्ट फॉर दिस टुडे. So this is the budding. Budding involves the formation of a new individual from the bulges known as buds formed on the parent body. This method of reproduction is common in Hydra. In Hydra, the cell divides rapidly and a specific site, एक साइट में ही सेल मल्टीप्लाई होने लगता है, बड़ा होने लगता है वहां से हाइड्रा, and develop as an outgrowth called the bud. These buds, while being attached to the parent plant, develop into smaller individuals. When these individuals become mature enough, they detach from the parent body and become individual. Whatever I had explained you can write in text, Bhumika, if any doubt is there. Okay, so this is the bud. They detach from the parent's body and become an individual, independent individual. Oviparous and viviparous. External fertilization, internal fertilization. ठीक है, external fertilization is oviparous, अंडे देकर बच्चे पैदा करना, and viviparous आपको एक लैक्टेशन पीरियड मिलता है, एक प्रेगनेंसी पीरियड मिलता है जिसको हम लैक्टेशन पीरियड भी बोलते हैं. उस पीरियड में ही बच्चे को पेट में ही डेवलप करना और फिर कुछ समय के बाद डिलीवर करना, जैसे उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है. तो एनिमल्स which lay eggs outside their bodies are known as oviparous animals. All birds, frogs, lizards, they all are the egg laying animals ना. तो egg laying animals जो होते हैं वो oviparous होते हैं and they are giving birth to their young ones, they are the viviparous. This is an important only for 2 marks. Like एक डॉली क्लोन, क्लोनिंग मीन्स ऐसा था, डॉली was the first cloned animal is genetically identical to its parent sheep. वैसे तो आप एनिमल्स में आप कितने भी एनिमल्स देखेंगे तो आपको कभी भी एनिमल्स हमेशा लगभग सबको सेम दिखते हैं. अगर आप डॉग्स को देखोगे तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रीड देखते हो, लेब्राडोर्स, ठीक, तो लेब्राडोर्स अगर आप देख रहे हो तो आपको लेब्राडोर्स की सारी वैरायटी एक जैसे दिखती है, सबके चेहरे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो आपके घर के आसपास घूम रहे होते हैं, आपको उन सब में डिफरेंस दिख जाएगा. किसी का चेहरा डिफरेंट होगा, तो किसी का कलर डिफरेंट होगा, किसी का वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, किसी का काटने का भौंकने का स्टाइल डिफरेंट होगा, किसी का क्या बोलते हैं बॉडी कलर डिफरेंट होता है, टेल शेप डिफरेंट होता है. तो ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं जो कि उस स्ट्रीट डॉग को उसके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है. तो क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी. तो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में कहीं पर मैंने सुना था, ये मेरा मतलब मैंने न्यूज में देखा था कि क्लोनिंग इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इसकी क्लोनिंग इमेज आपको दिखती है, बस उसमें जान नहीं रहता, एग्जैक्ट वही कॉपी रहती है, ठीक है. उसको हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक. क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द बॉडी. बट अगर आपने उसको जेनेटिकली प्रोड्यूस किया है तो उसमें जान रहता है, ठीक. तो क्लोनिंग, एक डॉली करके शिप आया था, ठीक, एक डॉली शिप थी, दैट इज द मैमल. मैमल मतलब दे आर गिविंग द बर्थ टू देयर यंग वंस. Cloning is creating an exact copy of biological entity. A
Clone is created and inserted the complete genetic material of a regular body cell from a donor into a recipient. Sheep was viviparous animals and so propagate their offspring sexually. Sir Lal Wilmot from Roslin Institute in Edinburgh, Scotland created cloning. Dolly, तो cloning process से सर आयन विल्मट रोजलिन इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉटलैंड में है, उन्होंने एक प्रोसेस किया कि उन्होंने इंसर्ट किया इसके सारे जीन्स वाले कैरेक्टर्स इसकी मम्मी में, डॉली की मम्मी में, उसके पेरेंट्स से सारे कैरेक्टर्स लिए, एग को फ्यूज किया और मम्मी की बॉडी में इंसर्ट किया, तो उनको एकदम एग्जैक्ट कॉपी मिली डॉली अपने पेरेंट्स की, मम्मी या पापा में से किसी एक की कॉपी उसको एग्जैक्ट मिली। तो ये जिसने भी निकाला है क्लोनिंग, उन्होंने इस पर्पस से निकाला कि आप एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, बट उसकी प्रोसेस लंबी है। एक होती है जिसमें जो आप बर्थ देते हो, किसी में जान डालते हो, है ना, 9 महीने जैसे ह्यूमन बींग्स की प्रेगनेंसी पीरियड रहती है 9 मंथ्स की, 9 मंथ में आप उस 9 मंथ में उसमें पूरा बच्चे को पूरा कवर करते हो, उसकी पूरी साइकिल कवर करते हो, तो वैसे ही क्लोनिंग प्रोसेस होता है। दूसरा क्लोनिंग प्रोसेस होता है जस्ट एग्जैक्ट कॉपी, उसमें जान नहीं रहती, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टैच्यूज का एग्जांपल दिया, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, नो नीड ऑफ गोइंग इन डिटेल, just to understand the word only cloning and who discovered it and in which mammal it was discovered, किसने डिस्कवर किया, किस एनिमल में डिस्कवर किया और उस एनिमल का नाम क्या, only that's all is to be remembered, not more than that. World's first cloned buffalo was in India. Scientists at India's National Dairy Research Institute of Indian state of Haryana produced the first cloned buffalo back in February 6, 2008 using DNA from the ear of an adult female. Though unfortunate, it died of pneumonia soon after its birth. So it's not necessary कि वो बच्चा जी सकता है, उसमें अगर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से चैतन्य, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉग्स जो होते हैं, अभी किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्यों ही रिप्रोड्यूस, इवन फ्रॉग नहीं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी रेनी सीजन में ही प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ फिश ये रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पानी में इजिली इनके स्पर्म और एग का कांटेक्ट हो जाता है, इसलिए ये रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं। सो जस्ट टेक अ रिकैप ऑफ what I taught today. So from here, this is the structure of a frog, ठीक है। Here vena cava, ovary and oviduct. Vena cava, testis. This is the diagram. You can see it properly. Next week we will start new chapter, reaching to the age of adolescence. This is the life cycle of frog. Remember why they have tail metamorphosis. I had explained you right now. क्योंकि tail इनकी extinct हो जाती है बाद में. So this is the life cycle of a frog. Adult frog, egg, this tadpole, froglet. This is the life cycle. This is the picture where you see this female frog stick to the egg, sitting on the egg. Check your connection, Moksh. Okay. This is the reproduction. You can read it.
You have 2 minutes, you can read it. How reproduction occurs in frog, 3 marks question. How a reproduction occurs in frogs. This is metamorphosis, a biological process. I told you, transforming larva into an adult. It is sudden and abrupt change. Asexual reproduction. I think you all have learned this in class 7, so no need of going in detail. Asexual reproduction is a mode of reproduction that does not involve male and female gamete. It requires only one parent, and the offspring produce are exact copies of their parent. This is the binary fission. It is a type of asexual reproduction. Cell divides into 2 halves. Amoeba that reproduce through binary fission are bacteria and amoeba. In amoeba, the division of cells can take place in any place. It involves the division of its nucleus into 2 nuclei, which is followed by the division of its body into 2 halves. Each half of the body receives a nucleus. So, oviparous animals which lay eggs outside their bodies are known as oviparous. All birds, frogs, lizards, crocodiles, etc. belonging to this group. Animals which give birth to young ones are known as viviparous. Animals like lion, tiger, dogs and human belongs to this group. Cloning. Dolly was the first cloned mammal and is genetically identical to its parent sheep. Cloning is creating an exact copy of a biological entity. A clone is created by inserting the complete genetic material of a regular body cell from a donor into a recipient. Sheep are viviparous animals and so propagate their offspring sexually. Sir Anne Wilmot from Roslin Institute in Edinburgh, Scotland created Dolly. World's first cloned buffalo was in India. Scientists at India's National Dairy Research Institute in the Indian state of Haryana produced the first cloned buffalo back in February 6, 2008 using DNA from the ear of an adult female. So from where they had used the DNA? Ear, उसके कानों से लिया. Though unfortunately it died of pneumonia soon after its birth. So thank you. From my side, I had completed. Now, if you have any doubt, you can ask. Yes, folks. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry, गलती से हो गई. कोई डाउट नहीं है आपको?
Ma'am, by mistake I raised hand. Sorry, ma'am. Yes, Naman, you will get notes in portal today only. Thank you, Ronak. Anyone doubt? फ्रॉग जितने भी एग देते हैं उतने पूरे होते हैं कि नहीं? मतलब मुझे समझ में नहीं आया रौनक आपका क्वेश्चन। उतने